Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 11 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we were working on one-dimension array. In this lecture, we will do some remaining work of one-dimension array. We will start two-dimension array and we will do some programming practices using two-dimension array. First, we will do some remaining part of array, one dimension array. To copy from array A to array B, if you need to copy the entire array from array A to array B, then you can do this like A of 0, you want to copy it in B of 0, A of 1 into B of 1, A of 2 into B of 2, A of 3 into B of 3, up to A of 10 into B of 10. So in this way, the whole array would be copied, the whole array A would be copied to array B. Through programming, we will do this like for I is equal to 0, I is lesser than 10, I plus plus. Over here, if we have 10 values in the array, we will start our loop from 0 to lesser than 10 means 0 to 9, I plus plus. First time A of 0 would go into B of 0, then A of 1 would go into B of 1, A of 2 into B of 2. In this way, we will go from 0 to 9 and all the values of array A would be moved into the values of और will become the values of array B. पूरा array हमारा जो है वो array A जो है वो कॉपी हो जाएगा array B में. इस तरह से एक एक वैल्यू हमारी कॉपी होगी and we will start from 0 to 9 lesser than 10 mean 0 to 9 mean 10 value. अगर हमारा array A जो है वो 10 values का है, one by one each time when the loop would be processed, each time each value would move from or copy from array A to array B, while the subscript I vary would represent the position of the element. First time A of 0 would move into B of 0, A of 1 would move into B of 1, and in this way it will go up to 9. And A0 to A9 value would be copied into the B0 up to B9. So we can copy the entire array into another array. Another example, take the sum of square of 10 different numbers which are stored in an array. We have to calculate the sum of square of numbers stored in an array. Let's say we have an array of 10 values. The size of the array is 10. Sum of the square equal to 0. We have got a variable sum of squares. We initially set it up to 0. We would start our loop from 0 to lesser than array size. If the array size is 10, then the loop would start from 0 and goes up to 9 with one increment. Each time when I is equal to 0, the control enter into the body of the loop, where sum of square initially it is 0, 0 plus A of 0 into A of 0. So the value A of 0 multiplied by A of 0 mean if we have a value 2 on the position A of 0, mean 2 multiplied by 2, it would be 4 and 4 would be added into the sum of square. In this way, we would have square of each value and then this square would be added into the sum of square, and each time when loop goes on from 0 to 9, each time each value would multiply with itself and then it is added into the sum of square and the sum of square is calculated. So in this way we can calculate the sum of the square of values stored in an array. फिर सुन लें जी. If we have an array of 10 values and the size of the array is 10, initially we set the sum of the square equal to 0. हम loop 0 से 9 तक, because array size is 10 and I lesser than array size mean I
lesser than 10. So loop would start from 0 and go up to 9 with one increment as I plus plus. So every time a of I, if I is equal to 0, a of 0 multiply by a of 0 स्केयर हो जाएगा आपका, और ये स्केयर जो है ये सम ऑफ स्केयर में ऐड हो जाएगा, एंड न्यू सम ऑफ स्केयर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सम ऑफ स्केयर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन एन अरे. Okay, let's start our new topic, two-dimension array. Two-dimension array is also known as matrix. Matrix we all have studied in our ICS or HSSC or SSC. मैट्रिक्स जिसको उर्दू में आप कालब भी कहते हैं. तो टू डायमेंशन रे को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपके पास मैथ्स में कालब होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये काम करते हैं. In other words, two dimension array basically we have rows and columns. So when we have two dimension in the array, we would call it as two dimension array, and it is also named as matrices. In single dimension array, single subscript is used. So mind it, while we are studying our one dimension array, only one subscript is used, like here, or you can say over here only one subscript is there that represents the position of the element, while in two dimension array we would have two subscript that would represent the position of the element in the array, because in two dimension array we need to have two position, row number and column number. So in two dimension array we would have two subscript that would represent the element in the array. Two dimension array, its syntax is data type, array name, rows and columns. This is a simple syntax of the two dimension array. First of all, mention the type of the array, then the name of the array, and then rows and column, mean number of rows and number of columns. For example, int data type x is the name of the array. Here first first subscript would represent the number of rows, and second subscript would represent the number of columns. So over here we have an array, two dimension array. First dimension 2 and second dimension 3 mean we have 2 rows and 3 columns, and the type of this array is int. Okay, when we have int x 2 into 2, what does it mean? It actually mean is 2 rows and 3 columns. And we have, when we have 2 rows and 3 columns, it would be called as 2 multiplied by 3, and the total number of element in 2 by 3 array would be 6, as number of rows multiplied by number of columns, and we would have the value 6, and 6 is the number that is the total number of element in the array of type int x 2 into 3. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हमने कहा कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे इसमें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है. आप ये देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल इसकी रोज़ हैं. तो वी हैव 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, दीज आर द कॉलम्स. So number of element in first row are 20, 2 and 7. In second row are 8, 3 and 15. And when we are talking about the column, first column would have 20 and 8, second column would have 2 and 3, and third column would have 7 and 15. So each element need two subscript to be represented. For example, if we need to go for 7, what does it mean? It means first row and third column. Similarly, for 3, it means second row, second column. For 20, it is like first row, first column. So each element in this array, two dimension array, need two subscript that would represent the row number and the column number for each element. How to assess two dimension array or process two dimension array? For processing two dimension array, we use two nested loops. Actually, in two dimension array, we need two loops.
Mostly they are for loop. It is not compulsory that always use for loop for processing two-dimension array. So, but we need a nested loop. It may be while, it may be do while or for, but most of the time for matrices purpose, for is used, but you can use any of the loop other than for loop. So it is not compulsion, it is a good option. For loop is a good option for accessing two-dimension array. So you need to use nested loop for processing of elements in two-dimension array. The outer for loop, yeah, or you can say the outer loop, either it is for, while or do while. The outer loop correspond to the rows and the inner loop correspond to the column. So we would have nested loop, outer loop and inner loop. Outer loop would represent the row number and the inner loop would be used for the columns in the matrices. For example, if we have a two-dimension array like this, int a 4 into 5 mean we would have 4 rows and 5 columns, then how we can input data in this two-dimension array containing 4 rows and 5 columns. So as far as already stated, the outer loop, this one I is equal to 0, I lesser than 4, I plus plus, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अरे में जो फर्स्ट पोजीशन होती है सबस्क्रिप्ट की वो ज़ीरो होती है, अरे आपका ज़ीरो से स्टार्ट होता है वन की बजाय. सो वी वुड स्टार्ट आवर लूप फ्रॉम ज़ीरो and for 4 rows it would go up to 3. So we would have row 0, row 1, row 2 and row 3. So this is the outer loop that would be used for rows and this is the inner loop that would be used for columns. So we have 4 rows, so the outer loop would start from 0 and go up to 3, and we have 5 columns, so the inner loop would start from 0 and go up to 4. सो ओवर हेयर याद रखें कि जब आपकी आउटर लूप एक दफ़ा चलती है तो इनर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है. सो व्हेन वी हैव आई इज इक्वल टू 0, कंट्रोल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द लूप, आउटर बॉडी, then the second loop, nested loop or inner loop, start from 0 and go up to 4. So first value that would be enter as 0 0, then 0 1, then 0 2, then 0 3 and then 0 4. Then inner loop is completed and control again transfer to the outer loop. The value of I would become 1 and again it enter into the body of the loop. J would again start from 0 to 4. Again the value that would be enter would be 1 0, 1 1, 1 2, 1 3 and 1 4. Similarly अगेन ये हमारी इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास जाएगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे फिर हमारा 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा. सो 2 0, 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4. अगेन 3 हो जाएगी, फिर कंट्रोल इन होगा और फिर ये 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा. सो 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 and 3 4. In this way, the matrix of 4 by 4 would be filled using nested loop. Similarly, for displaying purpose, you again need to have nested loops. So if you have an array of 4 into 5, 4 rows and 5 columns, as I already stated, the loop starts from 0 because of the first position of the subscript. So 0 to 3, the first row would be 0, and 1, 2 and 3. So similarly column would start also from 0. So outer loop is used for row purpose and the inner loop is used for column representation. So first time when outer loop starts, the value of I, control enter into the body of the loop, j 0 से start होगा. सो 0 0 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी, फिर 0 1 डिस्प्ले होगी बिकॉज आई वुड रिमेन 0 एंड जे वेरीज फ्रॉम 0 to 4. सो 0 0, 0 1, 0 2, 0 3
एंड 0 4। इनर लूप आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। और दोबारा जब कंट्रोल आउटर लूप के पास जाएगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 लेके फिर एंटर होगा। अगेन इनर लूप आपकी 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। सो द वैल्यू दैट वुड बी डिस्प्ले इज 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। इसी तरह से ये फिर कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास जाएगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये फिर 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। तो पहली वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो 2 0, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3 एंड 2 4। तो इस तरह से फिर ये 3 हो जाएगी और ये फिर 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। तो इस तरह से आउटर लूप जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और इनर लूप जो है वो कॉलम्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो आउटर आपकी एक दफ़ा चलती है और इनर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है। सो जैसा कि आपको पता है कि हम साथ साथ जो है वो जावा को भी कवर कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन अरे भी लिटिल बिट डिफरेंट है एंड डिक्लेरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विद रिस्पेक्ट टू जावा। तो इसकी थोड़ी डिक्लेरेशन डिस्कस कर लें, चेक कर लें। इसमें आपने उसी तरीके से जैसे इसका 1 डायमेंशन अरे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे आपने ये डबल ब्रेसेस यूज़ कर रही हैं। सबसे पहले डाटा टाइप आपने बतानी है, रे की टाइप, फिर डबल ब्रेसेस, फिर उसके बाद आपके आ जाएगा, सॉरी इनको स्केयर ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे वर्ड तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आ जाएगा आपका अरे नेम, देन न्यू दैट वुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट, again type, and then number of rows and column. So the first value in the in your square bracket represent the number of rows and the second value in the square bracket represent the number of column. तो ये आपका जावा में अरे की डेक्लेरेशन है जिसमें आपने 3 रोज के लिए और 4 कॉलम्स के लिए एक अरे क्रिएट किया है एक्स के नाम से और उसकी डाटा टाइप इंट होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये 3 by 4 का अरे होगा, 3 रोज़ होंगी और 4 कॉलम्स होंगे और उसका नाम होगा एक्स और उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी टाइप इंटीजर होगी। तो जिस तरह से हमने सी प्लस प्लस में मैट्रिक्स को इनपुट करने का तरीकाकार देखा है, इसी तरह से जावा में भी आप देख लें, लूप बिल्कुल उसी तरह से लगनी है, नेस्टेड लूप लगनी है। आपकी मर्ज़ी आप फार लगाएं या वाइल लगाएं। बहरहाल फार जो है वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहती है। मैट्रिसेस के लिए 2 डायमेंशन रे के लिए मोस्टली यूज़ फार लूप ही होती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। सो आउटर लूप उसी तरीके से आपके पास रोज़ के लिए और इनर लूप जो है वो कॉलम्स के लिए। तो अगेन उसी तरीके से आप एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, वो एस को असाइन होगा और वो एस जो स्ट्रिंग आपने इनपुट किया है वो इंटीजर डॉट पारसेंट से इंटीजर में कन्वर्ट होकर एन को असाइन होगा एंड देन एन जो है वो असाइन हो जाएगा उस नंबर को जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो सॉरी यहाँ पे आर और सी नहीं आएगा, प्लीज़ इसको आप चेंज कर लें। यहाँ पे आपके पास जे आएगा, सॉरी आई आएगा और यहाँ पे आपके पास जे आएगा। सो आई और जे का कॉम्बिनेशन होगा, आर और सी का नहीं होगा। आप इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पे आर और सी जो है वो गलती से टाइप हो गए हैं, आपने यहाँ पे आई और जे करना है। तो चूँकि इनर लूप जो है वो आपकी जे के लिए और आउटर लूप जो है वो आपकी आई के लिए है, तो यहाँ पे आर और सी नहीं होगा बल्कि आई एंड जे होगा। तो बिल्कुल उसी तरह का आपका कॉन्सेप्ट है कि पहले आपकी 0 0 इनपुट होगी, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, अगेन 1 0 1 2 1 3 एंड अगेन इसी तरह से फिर 2 0 2 1 2 3। इसी तरह से सिलसिला आपका जो है वो चलता रहेगा और ये आपकी लूप्स जो है वो इनपुट करेंगी आपके 2 डायमेंशन अरे में। तो मैं अगेन ये करेक्शन करवा रहा हूँ कि यहाँ पे आर और सी नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आई और जे होगा। तो आर को आप रिप्लेस करेंगे आई के साथ और सी को रिप्लेस करेंगे आप जे के साथ। सिमिलरली इसको जब डिस्प्ले करवाना है तो अगेन आपको नेस्टेड लूप यूज़ करनी पड़ेगी। उसी तरीके से आपके पास जो है वो आउटर लूप आप रोज़ के लिए यूज़ करेंगे और इनर लूप जो है वो आप कॉलम्स के लिए यूज़ करेंगे। तो उसी तरह से जब आर की वैल्यू 0 होगी, कंट्रोल इनर लूप के हवाले हो जाएगा और इनर लूप 0 से 3 तक जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो x 0 0,
then 01, then 02 एंड देन 03। उसके बाद इनर कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल आउटर के पास जाएगा, अगेन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी अगेन 0 से स्टार्ट होगा। तो पहली वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो x10 होगी, फिर x11, फिर x12 एंड देन x13। उसके बाद इनर फिर कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल फिर आउटर के पास जाएगा और आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी अगेन 0 से स्टार्ट होगी और फर्स्ट वैल्यू जो डिस्प्ले होगी वो x20 होगी, देन 21, देन 22 एंड 23। इस तरह से आपकी रो वाइज जो है वो डाटा कंप्लीट होता जाएगा। ओके, सो राइट डाउन द प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यूज इन 3x4 मैट्रिसेस एंड डिस्प्ले इन मैट्रिक्स फॉर्म। एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए कि आप एक 3x4 मैट्रिक्स में वैल्यूज इनपुट करें और फिर उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में डिस्प्ले करें। तो ये देखें, सबसे पहले आप अरे डिक्लेयर करेंगे, 2 डायमेंशन अरे जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। उसी तरीके से फिर आप जो है वो बफर रीडर की स्ट्रीम डिक्लेयर करेंगे, देन स्ट्रिंग आप एक एस ले लेंगे और फिर जो है वो आपकी लूप्स का प्रोसेस शुरू हो जाएगा वैल्यूज़ एंटर करने के लिए। तो ये वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप नेस्टेड लूप लगा के आप वैल्यूज़ जो है वो 2 डायमेंशन अरे में इनपुट करेंगे और फिर उसके बाद नेस्टेड लूप लगा के ही आप इस 2 डायमेंशन अरे को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये देखें कि पहले हमने जब नेस्टेड लूप लगाई है तो पहली वैल्यू जो इनपुट होगी वो x00 होगी। तो यहाँ पे x00 आपके पास 1 है, फिर 02 होगी, फिर 03 होगी, फिर 04 होगी, सॉरी 03 तक आप जाएंगे, 00, 01, 02 एंड 03 बिकॉज यू हैव 4 कॉलम्स। अगेन आर की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, तो आप फिर 1 0, 1 1, 1 2 एंड 1 3, फिर 2 0, 2 1, 2 2 एंड 2 3। इस तरह से आपकी ये नेस्टेड लूप की मदद से आपकी वैल्यूज़ जो है वो इनपुट होंगी 3x4 मैट्रिक्स में। और उसके बाद जब आपने डिस्प्ले करवानी होगी तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप जब वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो पहली वैल्यू x00 डिस्प्ले होगी, तो 1 इज़ x00, देन 01। तो ये जो स्पेस इसके दरमियान आई है इसके लिए यहाँ पे ये स्पेस जो है वो रखी गई है ताकि पहले जब 00 वैल्यू डिस्प्ले करे उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए 01 के लिए स्पेस, फिर 02 के लिए स्पेस और फिर 03 के लिए स्पेस। उसके बाद यहाँ पे हमारी इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी इस फर्स्ट रो के कंप्लीट होने पे। उसके बाद हम इनर लूप से बाहर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की वजह से लाइन चेंज हो जाएगी और दोबारा हम आर की वैल्यू अब 1 लेके एंटर होंगे। आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, वी विल एंटर इन टू द body of the loop again and C would start again from 0. So the value would be 1 0, then 1 1, then 1 2 and then 1 3। उसके बाद फिर हमारी नेस्टेड लूप इनर लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इनर लूप से बाहर आएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की मदद से हमारी लाइन चेंज होगी, फिर हम आर की वैल्यू 2 हो जाएगी हमारे पास। और जब आर की वैल्यू 2 होगी वी वुड एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द लूप अगेन and the inner loop again would start from 0. So 2 0, then space 2 1, then again space 2 2 and 2 3 और फिर हमारी इनर लूप कंप्लीट हो जाएगी। अब इस दफ़ा जब इनर लूप कंप्लीट होगी तो आउटर की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और आउटर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई हमारा मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इन दिस वे आप ये देखें कि हमने पहले नेस्टेड लूप लगा के वैल्यूज़ जो है वो 3x4 की जो है वो एंटर की और फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो हमने 2 डायमेंशन अरे को डिस्प्ले करवाया। तो ये जावा में मैंने आप लोगों के लिए किया, आप इसे C++ में भी एज इट इज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट थी प्रैक्टिस के लिए आपको साथ डिस्कस की जा रही है। आमतौर पे हम मैथ्स में 3x3 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या 4x4 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या मैट्रिक्स की एडिशन का कोई भी मामला होता है तो उसमें देखेंगे, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट डाउन द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। सो हमने 3x3 मैट्रिक्स को जो है वो सम करना है। वी हैव ए
3 by 3 matrix, first matrix. The second matrix is also 3 by 3, named as B, and we have got X that is also of 3 by 3, mean 3 rows and 3 columns. So X would be used for the sum of these A and B matrices. So if the matrix A has 3 rows 3 columns and the matrix B also has 3 rows 3 columns, when their sum is calculated, the resultant matrix would also have the same number of rows and columns. So we have three matrices A, B and C with each having 3 rows and 3 columns and two simple variables R and C. So first time enter value in the first array. अगेन नेस्टेड लूप की मदद से हम जो है वो फर्स्ट टू डायमेंशन array की वैल्यू एंटर करेंगे. पहले A00 एंटर होगी, फिर A01, फिर A02, फिर 10, 11, 12, फिर 20, 21, 22. तो R जो है ये हमारा रोज़ के लिए वेरिएबल हमने यूज़ किया और C जो है वो कॉलम्स के लिए यूज़ किया. तो जब R की वैल्यू 0 होती है तो C अगेन 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जाता है. So the 01, 0, 0, 01, 02 इनर कंप्लीट हो जाएगी. फिर दोबारा आउटर के पास कंट्रोल जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर जब हम एंटर होंगे सी अगेन 0 से स्टार्ट होगा, अगेन 1, 0, 1, 1 एंड 1, 2. इस तरह से हमारा अरे ए जो है वो इनपुट होगा. एंड सिमिलरली हम अरे बी की वैल्यू भी इसी तरह से इनपुट करेंगे. ये देखें लूप्स बिल्कुल वैसे ही लगाई हैं, वैसे ही नेस्टेड लूप लगाई हैं. जस्ट पहले हमने अरे ए इनपुट किया था, अब हम टू डायमेंशन अरे बी जो है वो इनपुट कर रहे हैं. तो ए और बी हमारे इनपुट हो गए. आगे देखें इसी विंडो में आपने इसको कंटिन्यू करना है. तो जब आपने मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेम पोजीशन एलिमेंट के साथ ऐड होकर रिजल्टेंट का भी सेम पोजीशन एलिमेंट बनाता है. तो इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि आपने अगेन नेस्टेड लूप लगानी है. तो A00 प्लस B00 इट वुड बिकम X00. देन A01 प्लस B01 it would become X01. Then A02 plus B02 and it would become X02. So first row is completed, then the value of R would become 1 and control again enter into the body of the loop. C would again start from 0. So A10 plus B10 X10 is calculated. Similarly A11 plus B11 X11 is calculated. A12 plus B12 and X12 is calculated. Then again the value of R become 2 and C would again start from 0 to 2. So 20 plus B20 X20 is calculated. Again A22 plus B22 X22 is calculated. Then A23 plus B23 and X23 is calculated. So this nested loop would calculate the sum of the two dimension array having 3 by 3 values. अब जब आपका सम कैलकुलेट हो जाए तो अब आपके पास x जो है वो आ चुका है और x को आपने डिस्प्ले करवाना है. तो उसके लिए अगेन आपको जो है वो नेस्टेड लूप लगानी पड़ेगी और नेस्टेड लूप की मदद से आप x को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं. वेयर x इज़ योर समेशन मैट्रिक्स जिसमें आपका सम आया है मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का. तो चूँकि ये भी आपके पास सेम रो एंड सेम कॉलम्स का मैट्रिक्स प्रोड्यूस हुआ है तो इसको भी डिस्प्ले करवाने के लिए आप नेस्टेड लूप भी यूज़ करेंगे और अपना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स x है वो डिस्प्ले करवाएंगे. इसका आउटपुट चेक करें जी कि हमने पहला अरे जो है वो एंटर किया, ये उसकी वैल्यूज़ थी. फिर दूसरा अरे एंटर किया, ये उसकी वैल्यूज़ थी. और तीसरा अरे जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस किया ये उसकी वैल्यूज़ हैं. चेक करें आप, दिस इज़ 0, 0 एंड 0, 0, 0, 0 and 0, 0. 2 plus 1 equal to 3 and 0, 0 of x is produced 3. Then 0, 1 and 0, 1. 0, 1 and 0, 1 of A and 0, 1 of B. This is 2, 2 plus 2 and 0, 1 of x is produced as 4. So हर वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ ऐड होकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स की उसी पोजीशन की वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस कर रही है.
ओके, राइट ऑन द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स यूजिंग जावा। अब यही प्रोग्राम हम जो है वो जावा में किस तरह से जो है वो डेवलप करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखें जी, हमने उसी तरीके से 3 मैट्रिक्स लिए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स ए 3 by 3 का, दूसरा मैट्रिक्स बी, दिस इज आल्सो ऑफ 3 by 3। 3 by 3 मीन 3 rows एंड 3 columns। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसके लिए भी आप सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के लिए ली हैं। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिक्स आपने डिक्लेयर किए 3 by 3 के, 2 को आप ऐड करेंगे और तीसरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपका प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये देखें, पहला जो है वो मैट्रिक्स इनपुट हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप जावा में थोड़ा डिफरेंट वे से जो है वो एंटर करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स आपका ये इनपुट हुआ है, फिर उसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स आपका ये इनपुट हो रहा है। सेम, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो आप ए यूज़ कर रहे हैं एंड ओवर हेयर यू आर यूजिंग बी। सो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए एंड द सेकंड मैट्रिक्स इज बी। अगेन नेस्टेड लूप लगा के ही आपने ए को भी जो है वो इनपुट करना है और नेस्टेड लूप की मदद से ही आपने बी को भी इनपुट करना है। और फिर अगेन फार्मूला इज सेम और मेथड इज सेम। द सम इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे, नेस्टेड लूप A00 प्लस B00। उसी तरीके से मैंने रोज़ के लिए R यूज़ किया और कॉलम्स के लिए C यूज़ किया। नेस्टेड लूप लगी हुई है, तो फर्स्ट टाइम आप जब R की वैल्यू 0 होगी और कंट्रोल एंटर होगा, C 0 से स्टार्ट होकर जो है वो 2 तक जाएगा, तो 00 प्लस 00 x00 प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर A01 प्लस B01 x01 प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर A02 प्लस B02 x02 प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर R की वैल्यू 1 हो जाएगी, C फिर 0 से स्टार्ट होगा, सो A10 प्लस B10 x10, फिर A11 प्लस B11 x11, then A12 plus B12, the resultant is x12। Similarly, R की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंट्रोल अगेन एंटर and C would again start from 0 to 2. So 20 plus 20, x is 20 is produced, A21 plus B21 x21 is produced, A22 plus B22 x22 is produced। So in this way nested loop लगा के आप इनका सम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसी तरीके से चूंकि आपका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो भी सेम रोज और कॉलम्स का है, तो उसी तरीके से आप जो है वो नेस्टेड लूप लगा के आप अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके जी, इसको देखते हैं, रन करते हैं इसे। सो फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू एंटर करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स, तो ये देखें आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया जो कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो है वो सम है आपके पास, और ये भी 3 by 3 का मैट्रिक्स आपके पास प्रोड्यूस होगा। ओके जी, तो इस तरीके से आप जो है वो थोड़ा सा जावा का जो है वो सी प्लस प्लस से थोड़ा डिफरेंट है सिंटैक्स उसका, तो आप इसके जो सिंटैक्स है उसको ख़ास तौर पे जहन में रखें। तो जहाँ पे भी डिफरेंस आता है मैं उसको सेपरेटली डिस्कस करता हूँ। लूप्स का सिंटैक्स सेम है, वो आपने उसी तरह से लगानी है, लेकिन ये है कि अगर अरेज की बात की जाए तो इसके 1 डायमेंशन अरे और 2 डायमेंशन अरे को थोड़ा डिफरेंट वे से जो है वो डिक्लेयर और यूज़ किया जाता है। यूजेज तो सेम है, थोड़ी डेक्लेरेशन उसकी डिफरेंट है, तो इसको काइंडली जो है वो आप ख़ास तौर पे देख लें जहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हुआ है कि जी इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, ताकि आपको कोई जो है वो मसला ना हो। ये देखें, अगेन थोड़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 डायमेंशन रे जावा में जो है वो इस तरह से डिक्लेयर होता है, ये पूरी आपको स्टेटमेंट देनी होती है उसकी।
ठीक है। और सी प्लस प्लस में अगर जो है वो आप 2 डायमेंशन अरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका सिंपल मेथड है कि पहले आपने डाटा टाइप बतानी है, फिर वेरिएबल नेम, और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। ओके जी, आप इसको एक दफ़ा जो है वो दोबारा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रेलिवेंट और भी जो है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फिर जो मसला होगा उसको हम देखेंगे। ओके जेंटल, थैंक यू बॉयज़, थैंक यू स्टूडेंट्स।